تبدیل ہوئے، اور لوگوں نے اس طرح کچھ سمجھنا شروع کر دیا کہ ایک مخصوص شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک مخصوص طبقہ جو مدرسے میں رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، مسجد کے کمرے میں رہتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ دیہاتوں میں، گاؤں میں جب پنچایتیں ہوتی تھیں اس میں علاقے کے سب معززین کو لوگ دعوت دے لیتے تھے، لیکن مولانا صاحب کو بلانا الا ماشاءاللہ گوارا نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر جو بلند مرتبہ ایک عالم کو دینا چاہیے، جو اعزاز ایک عالم کو دینا چاہیے. میں نے حضرت جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے آتے جاتے بیٹھتے، میں نے ان کی بات سنی. میں یہ گزارش کروں گا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، میں آج دوپہر میں ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ خواجہ اجمیر کا آج ہم منوں کے حساب سے لنگر پکاتے ہیں اور بڑا ٹکا کے کھایا جاتا ہے، پر خواجہ اجمیری کو تو ساری زندگی پتھروں سے مقابلہ کرنا پڑا ہے. یہاں خیمہ لگایا تو اٹھاؤ یہاں سے، چلو آگے. حضرت داتا صاحب کو آپ پڑھ کے دیکھیں کتنی دفعہ ہندوؤں نے قاتلانہ حملہ کیا. میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں، کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا. وہ آزمائشیں جو ہم نے یعنی سوسائٹی میں جو ایک عالم کا، ہاں اگر وہ خطیب بن گیا ہے یا پیر بن گیا ہے یا اس نے صبح 9 بجے سے عصر تک کوئی تعویذ دھاگے کا کاروبار شروع کر لیا ہے تو پھر کہیں وہ اعزاز پا جائے تو پا جائے، ورنہ بحیثیت ایک عالم دین کے، دین سکھانے والے آدمی کے. آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ امام ابو مالک گئے ہارون رشید کے دربار میں، تو ہارون رشید اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو ایک صاحب نے کہا مولوی کے لیے اٹھے ہو؟ فرمانے لگے نہیں، رسول اللہ کے دین کے علم کی قدر کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا. اس کے سینے میں حضور کے دین کا علم ہے. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ طالب علموں سے بھی کہوں گا، علماء سے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری یہ سوچ ایک طالب علم کی ہے، یہ جو بعض لوگ گھبرائی بات کرتے ہیں نا. میں نے ایک دفعہ صاحبزادہ قاول مصطفیٰ جمیل صاحب سے کہا، میں نے کہا حضرت صاحب کوئی آپ کے دادا اعلیٰ حضرت بریلوی کے خلیفہ تھے، آپ کے والد سلطان الوارثین تھے، تو کوئی بات ہی بتائیں آپ ان کی، کوئی خاص بات جو ہمارے کام آئے. تو کہتے ہیں مجھے ایک دن جب مجھے گولڈ میڈل ملا اور میری بڑی شہرت ہوئی تو لوگوں نے مجھے اور کئی القابات سے یاد کرنا شروع کیا. تو میرے ابا جی مجھے بٹھا کے کہنے لگے قاول مصطفیٰ اسی مولوی ہاں، اس گل تو کدے گھبرانا نہیں، اس بات سے کمتری کا شکار بعض لوگ ہو جاتے نا شکار، اور مجھے مولوی نہ آخیا جائے. بھائی یہ کوئی چھوٹا لفظ ہے؟ یہ آپ نے مطلب کیوں اتنا گھبرا کے لیا؟ کہنے لگے ہم مولوی ہیں. دیکھو نا لوگ کہیں جاتے ہیں تو کس کس طرح کی طلب لے کے جاتے ہیں. تیرے میرے پاس جب بھی کوئی آتا ہے نبی پاک کے دین کی بات کرنے جاتا ہے. تو اس کو باعث اعزاز بنانا ہے یا باعث شرم بنانا ہے؟ وہ قومیں کمزور ہو جاتی ہیں جو اپنے پہلو کمزور کر لیتی ہیں. پہلو میں بس تھوڑی سی نا چیزیں سمجھ، دیکھو جی وہ فلانا بندہ مولوی کی عزت نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے دل ہمیشہ علماء کی طرف موڑ کے رکھے. لوگ تڑپ کے آتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں، بس بات اتنی ہے کہ ہم اسے کمزوری کیوں بنائیں. اور اگر بالفرض کوئی ایسا شخص نظر بھی آئے جو کسی عالم کی عزت نہیں کرتا تو پھر بھی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عالم اور طالب علم تو اس شان کے لوگ ہیں کہ ڈگری ابھی کوئی بھی نہیں ملی، پہلے دن گھر سے نکلے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر اسی دن ہی بچھا دیتے ہیں. کمزوری کس بات کی ہے؟ خفگی کس بات کی ہے؟ ہارون رشید نے کہا امام قصائی سے، حدیث کے استاد تھے، کہ حضرت میرے بیٹے کو گھر آ کے پڑھا دیا کرو. میرے بیٹے کو پیسے جب تک چھوٹے ہوتے ہیں بچے سویرے مسجد جا کے پڑھتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کسی کے پاس زیادہ آ جائیں تو پھر 2 4 5 لوگ اکٹھے بیٹھ کے ایک گھر میں ایک استاد ٹیوشن پہ رکھ لیتے ہیں.
और अगर थोड़े और ज़्यादा आ जाएं तो फिर कई दफ़ा यूँ भी होता है कि कारी साहब पढ़ाने वाले दरवाजे पे पहुंच जाते हैं और फ़ोन करते हैं कि ताला लगा हुआ है, तो जवाब आता है कि वो तो हम बस ना याद ही नहीं गया, अभी तो ठहर पे आए हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे हैं ना। तो वो थोड़ा सा ना फिर मिजाज और थोड़ा मजबूत हो जाता है। याद रखें, मुझे एक दफ़ा एक साहब ने पूछा था कि जनाब हमारे जो मस्जिद के खतीब है ना, दूर दूर से आके लोगों ने उनसे फैज़ पाया, और मैं सदर हूँ मस्जिद का, मेरे बच्चे नहीं पढ़ सके, कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपने सवाल पूछा है तो अब जवाब आपने हौसले से सुनना है। कई लोगों में सवाल की हिम्मत होती है, जवाब की नहीं होती। तो मैंने कहा आप हौसले से जवाब सुने। वो जो दूर से आते हैं ना आपके मौलाना के पास जुमा पढ़ने, वो कहते हैं हम हजरत साहब के पास जा रहे हैं, हम किबला के पास जा रहे हैं, हम शेख के पास जा रहे हैं, और आपने अपने घर ये बताया हुआ है कि असी मौलवी साहब रखे ने 15,000 में। ये फर्क है। जब तक उनकी ज़हन में आप वो उसका खाका नहीं ना बनाएंगे कि वो एक मजबूत आलिम है, वो हमें दीन बताता है, जब आप ये खाका नहीं बनाएंगे, मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? आपके शहर में, जिस शहर में आप बैठे हैं ना, यहाँ शेखुल कुरान रहे हैं, यहाँ शेखुल हदीस रहे हैं, हजरत मुफ्ती अमीनुद्दीन बदायूनी, आलिम बामल शेखुल कुरान, और हमने देखा गहरी नजर किताब और सुन्नत पर गहरी, और जितना इल्म उतना ही अमल। हजरत मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह, यहाँ हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह, यहाँ बड़े लोग रहे हैं। लेकिन पता क्या होता है, यानी मेरी तरह का सबसे निकम्मा बंदा भी है ना, तो अगर पता चले ना कराची से आ रहा है, क्योंकि वो कराची से आ रहा है, तो एक ज़हन में ख्याल होता है कि इस दफ़ा ना हमने बंदा, हमारे एक दोस्त ने जलसा किया करते थे, तो इस दफ़ा उन्होंने लाहौर के खतीब बुलाए, तो अगली दफ़ा एक बुजुर्ग को कराची से दावत दी, तो मैं क्यों नगे से समुंदर ही सारा, अब आगे कहाँ बढ़ोगे? सिर्फ एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि जब ज़हन में वुसअत होगी ना, मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे, खैरात ले ली जाती है, प्याला सीधा होना चाहिए। जब बंदा प्याला टेढ़ा लेके जाए ना, उसके ज़हन में ये बात बैठी हुई हो कि जनाब वो मैं तो खुद बड़ी शय हूँ, जब उसका प्याला ही सीधा ना हो, फिर उसको फैज कर। हारून रशीद ने कहा इमाम कुसाई से कि मेरे बेटे को घर आके पढ़ा दिया करे। इमाम साहब फरमाने लगे ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन का इल्म है, इसे रुसवा नहीं किया जा सकता। जहां झाड़ू देने वाले का बेटा आके पढ़ेगा ना, वहीं बादशाह का पुत्र भी बैठेगा। अगर तू भेज सकता है तो आ जा, और आप यकीन करें फैज इसी तरह ही मिलता है, करम इसी तरह ही होता है। वो जो किसी के दरवाजे पे झाड़ू दे के खादिम बनते हैं, उन्हें मखदूम बनते हैं, उन्हें मखदूम बनने में मजा भी आता है, उन्हें कुछ जायका भी नसीब होता है। लेकिन जो बगैर पढ़े नकल मार के पास हो जाए ना, उनके पास कई दफा सनत तो आ जाती है, इल्म नहीं आता। डिग्रियां तो होती हैं पर वो रसूख नहीं रखते, इसको समझ लें। कहा मेरे बेटे को पढ़ा दिया करे, तो फरमाया जहां सबके बच्चे पढ़ते हैं तेरा भी पढ़ लेगा। कहने लगा चलो फिर इस तरह करें कि सबक जरा पहले सुन लिए करे, शहजादा तो है ना। फरमाने लगे ना भाई, दीन का उसूल है, जो मस्जिद में पहले आएगा वो पहले जगह में बैठेगा, जो बाद में आएगा जुमे वाले दिन उसे गर्दने फलांगने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तेरा पुत्र बाद में आएगा तो पीछे बैठेगा, सबक पढ़ेगा। हारून रशीद सियाना आदमी था, उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर इरादा मेरा पहले भी यही था, पर मैं चाहता था किसी ऐसे वैसे मौलवी के मत्थे न लग जाऊं, किसी गैरतमंद आलिम से बच्चा पढ़वा। इरादा मेरा पहले भी यही था, लेकिन चाहता था कोई गयूर बंदा मिले, गयूर जो इसके अंदर खुद ही पैदा करे। मैं ना अपने मदरसे से बाहर निकल रहा था, तो एक साहब चाबियां लटकाते लटकाते आए और मुझे हाथ दिया। कोशिश की है, जल्दी इदारा बनाया, बड़ा करके बनाया, किसी जगह अभी तक गला नहीं लगाया। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होंगे। अल्लाह मददगार है, हमारी ये सीरत से बढ़कर अता करता है, औकात से ऊपर जाकर देता है। लेकिन कमजोर हो जाना और बिल्कुल अपने आप को सतह पे ले आना, इससे कमजोरी। मैं निकल रहा था गाड़ी में, तो मुझे इशारा किया, हारन दिया एक हॉल के मालिक ने। मैं बाहर आया, अस्सलाम वालेकुम, तो चाबियां हिलाते जा रहा था। तो पीर साहब वो बरात आई सी, वो खाना 2 जगह बच गई ने, तो वो मुंडिया भी कहा जेडे उत्थे काम करते हैं, तो उन्होंने को भी बच गई ने, तो मदरसे मंगा लो।
انہوں آخیا میں کہ آج جائیں نا دیکھو ساڈے مدرسے کا رخ نہ کری. 3 ٹائم الگ سے سالن پکتا ہے. صبح سالن اور ہوتا ہے, دوپہر ہوتا ہے, شام اور ہوتا ہے. تساں تو روٹی تک ہی نہیں جڑی مولویاں کئی باری کھا لئی ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر بھول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. اور یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی روز کمزور پڑنا, پیچھے پیچھے ہٹنا. کہنے لگا ہارون رشید میں چاہتا تھا کوئی دلیر عالم ملے, دلیر عالم, اور میں اس سے, مجھے کہہ لینے دو نا, 7 ستمبر گزرا ہے, مجھے کہہ لینے دو نا. یہاں جو 4 دن کسی سرکاری عہدے پہ رہے, ان کے رنگ بھی بدلے, گاڑیاں بھی بدلی, بنگلے بھی بدلے, اور ایک حضرت صدیق اکبر کی اولاد پاک کا شخص وہ بھی تھا جسے لوگ مولانا شاہ احمد نورانی کہتے تھے, جس نے 30 سال سے زیادہ اس ملک میں سیاست کی, اور اتنی وضو والی سیاست کی, اتنی دھلی ہوئی سیاست کی, اتنی قابل رشک سیاست کی کہ جوتے کا تسمہ تو کبھی ٹوٹ گیا, لیکن نظریے میں 1 منٹ کے لیے بھی گردش نہیں آنے دی, 1 سیکنڈ کے لیے بھی گردش نہیں آنے دی. کسی نے کہا مولانا بڑے حالات عجیب و غریب ہوتے ہیں, اور کراچی تو شہر ہی بڑا نازک ہے, یہاں تو حالات ویسے ہی تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, تو اتنی مضبوطی. فرمانے لگے پہلے دن کو تقریریں کرتا تھا, اور رات کو مصلی پہ بیٹھ کے رب رسول کو یاد کرتا تھا کہ اللہ مدد آ جائے, مالک مدد آ جائے, مالک مدد آ جائے. کبھی غور کرنا اس پر, کبھی یہ میں بہت آپ کو پیچھے نہیں لے جا رہا, ابھی تو میں نے نہیں بات کی پیر میرے علی شاہ صاحب, ابھی میں نے بات نہیں کی اعلیٰ حضرت بریلوی کی, ابھی میں محدث کچھوچوی کی طرف نہیں گیا, ابھی نہیں بات کر رہا صدر اللہ فاضل کی. یہ قریب کی بات دیکھو جن کو ہم جیسے لوگوں نے بھی دیکھا, آتے جاتے دیکھا, اٹھتے بیٹھتے دیکھا, پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں, دھبے نہیں ہوتے. حضرت مولانا نورانی, اور یار ذرا غور تو کرو, 30 سال سے زیادہ بندہ سیاست کرے اور مکان اس کا کرائے کا ہو, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہو, لیکن چھڑی اتنی مزیدار, قرآن مجید کی تلاوت زبان پہ جاری ہو تو جیسے سحر طاری ہو گیا پوری دنیا پر. رات کو لوگوں نے ڈالروں سے بھرا بیگ دیا کہ مولانا سویرے اسمبلی میں قرارداد ہے تو مہربانی کریں. تو مولانا کہتے ہیں میں نے پہلا جملہ تو یہ کہا کہ میں یہ کام کر نہیں رہا, مجھ سے کرایا جا رہا ہے. تو وہ پھر ان کے خیال میں بات آئی کہ پتہ نہیں کون کرا رہا ہے. کہنے لگے ڈالروں کا بیگ ہم بھی لائے ہیں. کہنے لگے تم تھوڑے لائے ہو, میں تو رات بکا ہوں مدینے کی گلی میں, اور پتہ نہیں کیا ریٹ لگا ہے. مولانا فرماتے صبح جب میں قرارداد پیش کرنے گیا تو ایک بالکل لبرل آدمی تھا, میرا خیال تھا یہ سائن نہیں کرے گا, ان کا مزاج بالکل اور تھا, تو مولوی تو داڑھی تو مسجد تو اس کام سے تو وہ معاذ اللہ الرجی کرتے تھے. لیکن شیخ کہتے میں نے قرارداد کا مسودہ جب اس شخص کے سامنے رکھا نا, میرا خیال تھا کہ یہ سائن نہیں کرے گا. وہ بندہ اینک منگایا کرتا تھا, پھر سائن کیا کرتا تھا. جب میں نے کہا نا یہاں سائن کر دو, تو کہتے ہیں اس نے کہا کیا ہے مولانا, یہ وہ لوگ تھے اسمبلی میں جو کہہ رہے تھے یہ کافر اور مسلمان مسجدوں میں کر لیا کرو کسی کو, یہ پارلیمنٹ میں کہاں لے آئے ہو یہ ویسے. کہتے ہیں وہ میں نے اس کے سامنے رکھا تو کہنے لگا مولانا یہ کیا ہے. تو میں نے کہا جی وہ جو قادیانی ہے نا, ان کے کفر پر آپ سے سائن کرا رہا ہوں, ختم نبوت کی قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں مجھے کیا, وہ پہلے تو اپنے خادم سے سیکٹری سے کہا کرتے تھے نا اینک لاؤ, آج کہنے لگے مولانا تم اینک بھی رہنے دو, تم انگوٹھا رکھ دو, کہاں سائن کرنے ہیں میں وہی سائن کر دوں گا. مولانا کہتے ہیں تائید ربی تھوڑی سی نا انسان میں, وہ 1 منٹ کے لیے, صرف انسان نے 1 منٹ کے لیے بات کرنی ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید نے ترتیب یہ بیان کی ہے کہ پہلے بندہ ڈٹتا ہے, پھر اللہ مدد کرتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کا نام لے کے تم ڈٹ جاؤ, اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیں. لیکن اگر کسی کو ڈٹنا ہی نہ آئے, کھڑا ہی نہ ہونا آئے, کمزور باتیں کرے, کچی باتیں, تو وہ امام قصائی کے پاس ہارون رشید کا پتر پڑھنے لگا. ایک دن امام صاحب وضو کر رہے تھے,
हारून रशीद का बेटा पैर धुला रहा था। हारून रशीद घोड़े पे गुजरा वहां से, लोगों ने कहा हुजूर इसका तो अब्बा आ गया है, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, वालिद आ गया। तो हज़रत फरमाने लगे आ गया तो फिर क्या करेगा। तो पैर धुलाता जा रहा। हारून रशीद भी बड़े हैरत अंगेज अंदाज में तजस्सुस के साथ घोड़े से उतरा, छलांग लगा और तेजी से इमाम की तरफ आया। तो वहां लोग कहते हैं दुनिया कांपने लगी कि ये कहेगा कि पढ़ाने को पुत्र दिया है तो पैर धुलाने को दिया। कहते वो बड़े जोर शोर से आया, लेकिन जब करीब आया ना तो उसने जोर से अपने बेटे को एक तमाचा मारा। कहने लगा ये तू क्या हरकत कर रहा है कि तूने सिर्फ लोटा पकड़ा है और उस्ताद जी अपने हाथों से पैर धो रहे हैं। एक हाथ से लोटा पकड़, दूसरे हाथ से उस्ताद के पैर धुला। तूने फैज नहीं रहना शेख का। तो एक बात तो ये है कि थोड़ी सी दिलेरी, और मैं सीखने वालों से भी कहूंगा अगर हो ना सीखना तो फिर बंदा ना शागिर्दों से भी सीख लेता है। अगर उसने तय कर लिया है कि मैं उन तगड़ा मौलवी हूं। ये बहुत सारे आम लोग मिलते हैं, आम लोग सादे से। मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे जी मौलवी साहब मैं मसला ना 21 मौलवियों को पूछया तो उन्होंने हल नहीं किया, तुसी भाई हो, मैं तुहाडे को पूछन लगा। मैं क्या तुसी रह नहीं दियो जेड़ा 21 को नहीं ना हल होया, मेरे लिए पहले ही मुश्किल है वो। इसलिए कि 2-4 पहेलियां याद कर लिए हैं आप, नफे वाली तो को बात सीखना नहीं चाह रहे। तो मिजाज जब तलब का होता है ना सीखने का। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कुछ चंद लफ्ज पढ़े हैं तो मुझे उस्ताद जी कहते हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैंने एक दिन उनको फ़ोन किया, तो कोई काम था तो मुझे कहने लगे कभी चक्कर लगाएं। मैंने उनसे सीखा, कभी चक्कर लगाएं। मैंने कहा यार तू दुआ करना अल्लाह को छोटी गाड़ी दे दे तो फिर इंशाल्लाह आएंगे। कैसे लगा उस्ताद जी अल्लाह को लो मंगनी जो तो बड़ी सारी मंगो, छोटी सी गाड़ी का क्या मतलब हुआ, किसी बंदे से मांगनी। तो मैं सखर मोटरवे पे चढ़ा, वापिस आने के लिए सिंध के कुछ शहरों का सफ़र हमने करना था। मोटरवे में चढ़ा तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा लो भाई अब ये लाहौर तक मोटरवे है, तुम्हें दिक्कत कोई नहीं होगी, चलाते जाओ सुकून से। तो वो कहने लगा जी पढ़े लिखे तो आप ही हैं, पर छोटी सी बात मैं भी कर लूँ। मैंने कहा करो। कहने लगा जी इस पे गाड़ी चलाना मुश्किल है, इसलिए कि नींद आनी शुरू हो जाती। वो जहाँ कोई स्पीड ब्रेकर भी आए, जहाँ कोई बंदा पहले खुद क्रॉस भी गलत करे और जाती दफा ताना भी दे जाए कि किधरों से खलो चलान दी जा, तो ये ना थोड़ा सा बंदा ना ताज़ा दम रहता है, होश में रहता है, उसे नींद नहीं आती। जो मुश्किलात आती है ना जिंदगी में, यकीन करें फइन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा, रब एक मुश्किल देता है तो डबल आसानियां अता फरमाता है, उसने कानून बना दिया है। तो एक तो मिजाज सीखने का। दूसरी बात यह है कि अल्फाज के हेर फेर में इंसान लगा रहे और कभी उसका लुत्फ ना ले, उस पर कभी अमल ना करे, तो कई दफा अल्फाज का गोरख डंडा तो बन जाता है लेकिन वो बंदे को नफा नहीं देता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो इल्म तो हो पर नफे वाला ना हो। जो बंदा थोड़ा सा सीखे ना उस पर अमल का मिजाज पैदा करे, अमल का। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूक सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह तरीक़त में अपने नक्शबंदी तरीके के मुताबिक उन्होंने किसी शख्स को मनाज़िल सुलूक तय कराई। वो जो लताइफ थे, जो चीज़ें असबाक हैं जो हमारे सलासल के, वो सारे आपने तय कराए और फिर आपने उस शख्स को, वो आलिम भी थे सूफी भी थे, फिर उनको इजाज़त व खिलाफत अता फरमाई। कुछ दिनों के बाद इस्तिफ़सार किया, अहवाल पूछे तो साहब ने जवाब लिखा। अर्ज़ करने लगे हुजूर आपने मुझे इजाज़त दी थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन के तीनों शोबों में काम करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तकरीर भी करता हूँ, लिखता भी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ तीनों शोबाजात में खिदमत करूँ। तो मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब लिखा, फरमाने लगे फ़कीर को आपका ख़त मिला, बड़ी खुशी हुई, अल्लाह और बरकत दे। पर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तकरीर करते हैं, ये तो सारे काम लोगों के लिए। मुझे ये बताइए कि तहज्जुद में उठ जाते हैं? आप ये बताइए कि आपको कुछ लम्हे तन्हाई में दुरूद व सलाम का मौका नसीब होता है? आप ये बताइए कि वो कैफियत बनती है कभी सर सजदे में रखा जाए फिर उठाने को जी न चाहे? अब ये बताइए कि आपकी कल्बी वारदात किस तरह की है?
हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं बैठ हैं और फिर शिकवे भी करते दिखाई देते हैं। शिकवे भी हो जो मैं इतने साल वहाँ गया और मैंने कहा खुदा के बंदे तू 6 माह भी तवज्जो से जाता और शेख के दिए हुए असबाब तवज्जो से पढ़ता, कुछ ना कुछ तो शजरा शरीफ मिलता है ना, कोई शय तो मिलती है ना। लेकिन अगर मिजाज ही ना हो कुछ हासिल करने का। और तीसरी बात मेरे अजीज जो बड़ी ज़रूरी है ना ज़िंदगी में, वो है इंसान का मुखलिस होना। ये जो रियाकारी होती है ना, ये कर कर के बंदा थक जाता है। ये अजियतनाक मरहला है। बस मैं बात समेटने लगा हूँ, आप तवज्जो फरमाइए। ये अजियतनाक मसला है। यानी मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। किसी आदमी को बोझ बना के पगड़ी रखनी पड़े ना सर पे, वो चंद लम्हों में थक जाएगा। लेकिन अगर कुछ समझे कि ये हुजूर की सुन्नत है, ये नबी करीम का तरीका है, उसकी तबीयत के साथ वो चीज़ मैच हो जाएगी। आप जब कोई काम भी बोझ बना के करते हैं तो वो आपको थका देता है, थकावट आने लगती है। लेकिन अगर आप अपने काम को शौक बना लेना, आपका काम शौक बन जाए। बड़ी थोड़ी तनख्वाह होती है मुदर्रिसीन की, आज भी थोड़ी है, ज़रूरियात के लिहाज से आज भी थोड़ी है। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जो 40-40 सालों से, 50-50 सालों से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना छोड़ते नहीं। हज़रत सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग, सैयद अबुल बरकात शाह साहब जैसे लोग जो 18-18 घंटे पढ़ाते हैं, शागिर्द ने कहा रात को पढ़ना का, ठीक है आ जाओ रात भी पढ़ लो। ये भला क्यों था? ये अगर इंसान ने सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करना हो तो फिर तो भाई 1 बजे से पहले लोग सामान समेट लेते हैं सारा। लेकिन क्यों इतनी मेहनत हुई? इसलिए कि वो जो ये पढ़ाते थे वो इनका शौक बन गया। ये मुखलिस लोग थे, मुखलिस। इनका मिजाज, सैयद महमूद रजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रमज़ान शरीफ में ना सैयद साहब तरावी पढ़ के घर तशरीफ ले गए। 1-2 घंटे हुए थे आराम करते हुए, थोड़ी देर में सहरी हो जाएगी, तो एक बंदे ने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा सैयद साहब हैं। मैंने कहा यार अभी आराम के लिए तशरीफ ले गए, बताओ। तो हजरत की आवाज़ सुन के बाहर तशरीफ ले, क्या बात है भाई? कहने लगा हुजूर एक मसला पूछना था। तो अल्लामा महमूद रजवी साहब कहते हैं मेरा ख्याल था कि इस वक्त रात को बीवी से कुछ झगड़ा हुआ है, खुदा न खास्ता कोई तलाक के लफ्ज़ क्या बैठा, अब घबरा के मुफ्तियाने किराम के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है। लेकिन उसने तो बड़ा अजीब मसला पूछा। सोतों को जगा के कहने लगा जी मसला ये पूछना था कि अगर रमज़ान में इशा के फ़र्ज जमात से ना पढ़े जाएं तो क्या वितर पढ़े जा सकते हैं? कहते हैं उसने सवाल पूछा तो मेरी आंखें सुर्ख हो गई। ये कोई इतनी मुश्किल बात थी, सवेरे पूछ लेता, कौन सा क़यामत आने लगी। कहते सैयद साहब मौजूद थे, बोला कुछ नहीं। मैंने कहा जनाब हजरत पूछ लो। तो हजरत फरमाने लगे भाई अगर उसने जमात से फ़र्ज नहीं पढ़े तो बेहतर है कि वितर भी जमात से न पढ़े, कोई और मेरे लिए बात कुछ आए। उसने कहा जी नहीं कुछ नहीं। हजरत तशरीफ ले गए अंदर। कहते मैंने उसका बाजू थामा और मैंने कहा यार क्या तुझे किसी ने बता दिया था कि सवेरे तूने फौत हो जाना है? बुजुर्ग आदमी है, सारा दिन काम किया, 20 रकअत तरावी बुढ़ापे में भी खड़े होके पढ़ी, और अभी गए हैं आराम पर, थोड़ी देर के बाद वक्त हो जाएगा नमाज का। अजीब आदमी हो। फौरन तुमने सवाल इस तरह को कहने लगा जी हुजूर आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं ना यहाँ से गुजर रहा था तो घर नजर आया, तो घर नजर आते मुझे सवाल भी याद आ गया, तो मैंने कहा पूछ ही ना लूँ। कहते मैं उसे डांट ही रहा था अभी कि हजरत फिर वापस आ गए और मुझे आके कहने लगे महमूद मसला मैंने बताया, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें किसने कहा इसको डांटने को, क्या मसला है? कहते हजरत ने मुझे अच्छी तरह डांट पीट दिया पूरी तरह जलाल में। और फिर उस शख्स से कहने लगे माजरत चाहते हैं भाई आप अपने घर जाएं। कहते जब वो चला गया तो पहले गुस्से में थे, फिर मैंने उनकी आंखों में अजीब रोशनी देखी और मैंने उनके बूढ़े हाथों को उठ के अपनी कमर पर आते देखा और फिर मेरी कमर पर और सर पर हाथ फेर के कहने लगे महमूद खुदा का शुक्र अदा करो कोई दीन की बात पूछने आया, अल्लाह का शुक्र अदा करो किसी ने आके हमसे दीन की बात पूछी। मैं तो चला गया था सोने के लिए, एक और नेकी मेरे हिस्से में लिखी कि मैंने किसी को दीन की बात बताई। जब आप पर चीज़ें तारी हो जाती हैं, देखो ज़ौक़ शौक़ ज़िंदगी का हुस्न होता है। जो लोग थकी थकी उकताई बातें करते हैं ना, मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ तो लोग बाज़ौक़ात वहाँ के मकामी खतीब साहब की, आलिम साहब की किसी बात का शिकवा करते हैं
जनाब आप देखें यहाँ ये होता है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं 2 घंटे के लिए आया हूँ, मैं गया। ये यहाँ आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी यही आलिम आपके पास आएगा। लिहाजा गुंजाइश पैदा करें, फ़रोग़ मोहब्बत में कुछ थोड़ा किरदार अदा करें। तो 3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की। एक तो शौक़ इल्म का हो, हम उलमा के पास जाएं तो कुछ सीखने का मिजाज लेके जाएं, कुछ सीखने का। बड़ी जल्दी ऐसी ऐनक न लगाएं कि जिससे बदगुमानियाँ जन्म लें। इंसान है सारे ही, बड़ी सारी कमज़ोरियाँ रह जाती हैं, लेकिन हमारा नुक्स ये है कि हम अपनी सारी कमज़ोरियों समेत अपने आप से प्यार करते हैं और दूसरे की एक नज़र आ जाए तो हमें घृणा आनी शुरू हो जाती है। एक तो अच्छे गुमान के साथ जाएं, सीखें, और दूसरा जब किसी चीज़ को सीखें तो उसे सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, गुफ्तगू में लाने के लिए नहीं, उसे अमल के लिए। और तीसरी बात, इखलास बड़ा ही हुस्न पैदा करता है, लोगों से रिश्ते इतने मजबूत कर देता है। जैसे जैसे बंदा मुखलिस होने लगता है उसे अल्लाह की ये कायनात बड़ी हसीन लगने लगती है, उसका प्यार बढ़ने लगता है, उसके ज़ौक़ शौक़ में तरक्कियाँ होने लगती हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला साहिब उर्स के दर्जात को बुलंद फरमाए, हमारी हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता करे। आखिर